જતીન મહેતા, ચીફ ઓફિસર ધોળકા નગરપાલિકા. સર, આજે રજૂઆત કરવા આવ્યા છે વિરોધ પક્ષ તરફથી, અને છેલ્લા ઘણા સમયથી જે ધોળકાની પરિસ્થિતિ તમે પણ જોઈ રહ્યા છો અને નગરજનો પરેશાન થઈ રહ્યા છે. એક તરફ જે છે નગરપાલિકાનું નવનિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે, ત્યાંનું બજેટ તો સરકાર પાસે છે, પરંતુ જનતાના પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન લાવવા માટે કેમ બજેટ ફાળવવામાં નથી આવતો? અને જો બજેટ ફાળવવામાં આવતું હોય તો ભ્રષ્ટાચાર જોવામાં આવે છે અને તેને લઈને પ્રજા હેરાન થાય છે. ના, એવું નથી, પણ જે એજન્સીએ કામગીરી પૂરતી સોંપી હોય, સમય મર્યાદામાં કામગીરી પૂરી ન થઈ એને લીધે પ્રશ્નો થાય છે. એ લીધે નવી એજન્સીને વર્ક ઓર્ડર આપીને ઇન્ટિમેશન પણ આપી દેવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત જે પાણીની પાઇપલાઇન છે એ એકચ્યુઅલી જીયુડીસી નાખતી હોય છે, એમને પણ વધારાના કામમાં લેવડાવી મેડાબેન ટાવરથી જે લાઇન નાખવાની છે, અત્યારે હાલમાં જે પમ્પિંગ સ્ટેશન છે ત્યાંથી મેઇન લાઇન સુધી જોઈન્ટ આપવાનું છે, એ કામગીરી પણ એ લોકો ત્વરિત હાથ ધરે એવી એમને વિનંતી કરવામાં આવેલી છે ને એ લોકો એમાં સંમત થયેલ છે. એટલે વિધિન શોર્ટ વાઇલ, હવે વિધિન ફોર્ટનાઇટ આ જે કંઈ પ્રશ્નો છે એનું સુખદ નિરાકરણ આવે એવી એ આશા છે. અને સર, આજે પાણીના બહાવના લીધે લોકોને એક રસ્તો છોડીને બીજા રસ્તા તરફ જવું પડે છે. ત્યાં વાયલન્સ ઊભો થયો છે, એકબીજાને મારામારી કરવામાં આવે છે. તેને લઈને તમે શું કહેશો કે આવી ઘટના ધોળકાની શાંતિને ડહોળવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે? તહેવારોની સિઝન છે તો લોકોને શું અપીલ કરશો? ના, ઘટના વિશે હું આ બાબતમાં બહુ ખ્યાલ જાણતો નહોતો, હમણાં 2 દિવસ નહોતું એટલા માટે. પણ અપીલ લોકોને એ જ છે કે લોકો પોતાની રીતે શાંતિ રાખે અને જે કંઈ પ્રશ્નો છે એમનું નિરાકરણ છે વિધિન ફોર્ટનાઇટ થવામાં છે, હવે પૂર્ણ થવામાં જ છે. થેન્ક યુ. દિવાળીની પહેલાં તેમને યસ, આશા રાખીએ, 100% આશા રાખીએ છીએ. અને આ પમ્પિંગ સ્ટેશન એ છેલ્લા 1 મહિના પહેલા મને એમ કહેતો હતો કે અમે 1 મહિનામાં પમ્પિંગ સ્ટેશન ચાલુ કરી દઈશું. આ બે ત્રણ જો આ આજે કામ હવે આપણે રાત પડી વાળે માણસો આવી ગયા છે. એ ચેમ્બર કાઢી અને પછી નરેશભાઈ સવાર મને એવું પાઇપ ફાટી ગઈ છે તો પછી હવે કામ બંધ. હવે એ 1 દિવસ હોય 2 દિવસ ચાલે. અત્યારે દિવાળીનો બજારના વેપારી દિવાળી પેલા સતત કામ કરશે, સતત કામ કરશે. એવો હવે વારંવાર મહાજન કોમ્પ્લેક્સ વાળો 4 નો પંપ લગાવી આખી રાત પાણી કાઢે છે. રાતે પાણી કાઢે તો ચેમ્બરો ખાલી થવા દે, સવારે પબ્લિક પાણી કાઢે એટલે ઓવરફ્લો થવા. તો વારે ઘડીએ પહેલા નોટિસ આપવા પણ કોઈ નોટિસ આપતું નથી. धोलका नगर पालिका विपक्ष नेता मंसूर खान जी तालुकदार. सर, ये जो पानी का बहाव है और उसके चलते एक समुदाय को किसी और रास्ते से गुजरना पड़ता है, जिसके चलते वायलेंस खड़ा होता है. और कल की ही घटना जो है परसों की, 3 लोगों को मारा गया जो अहमदाबाद सिविल में एडमिट है. तो अभी तक जब तक ये मामले का जो है सोल्यूशन नहीं आता है, आप पुलिस प्रशासन की टीम में वो कोई पॉइंट रखने की चीफ ऑफिसर साहब को रजूआत करोगे? आपके तरफ से कोई लेटर दिया जाएगा कि पुलिस का पॉइंट देना चाहिए? हम आगे ये भी प्रोसीजर करेंगे. अब नगर पालिका पे भी कहेंगे कि उसका काम जल्द से जल्द पूरा हो, और जो हमको ऐसा लगा तो हम आगे पुलिस प्रशासन से भी कहेंगे कि वो रास्ते पे पुलिस प्रोटेक्शन रखे तो आने जाने पब्लिक को कोई तकलीफ ना हो. इस बार जो झगड़ा हुआ है वो दूसरी बार कोई हुए नहीं, उसके लिए त्योहारों की सीजन है, गांव का माहौल ना बिगड़े, उस तरह से हम आगे करने मांगेंगे. और वो ये भी कहा गया कि आरोपियों को छोड़ भी दिया है पुलिस ने, तो उसके चलते भी आप लोगों के डेलीगेशन की तरफ से कोई रजूआत करने में आएगी? हम आगे जो ऐसा हुआ है कि कोई छोड़ दिया है, धरपकड़ नहीं हुआ, तो हम पूरे गांव के जो आगे वाले वो सब पुलिस स्टेशन जाके डेलीगेशन जाके एसपी साहब, DYSP साहब और PI साहब को भी हम रजूआत करेंगे. जी सर, क्या कहोगे? आपका नाम? મારું નામ મુનશી મોહમ્મદ ઝરાર ખાન અબ્દુર્રહીમ ખાન ઉર્ફે હનીફભાઈ મુનશી છે. पिछले कई दिनों से जो है धोलका के नगर जैसे हैं आप परेशान हो रहे हैं पानी के जो है बहाव के बीच, और कहीं ना कहीं त्यौहार का सीजन भी है, नवरात्रि चल रही है, उसके बाद दीपावली आने वाली है. ऐसे त्योहारों के बीच जो है नगर पालिका नाकामयाब साबित होती नजर आ रही है. उसके चलते आप लोगों की क्या रजूआत है और क्या अपील है? अभी हम इस जो चीफ ऑफिसर धोलका नगर पालिका से यही बात करना आए थे कि धोलका नगर पालिका इलेक्शन वार्ड नंबर 6 में छेला सिग्नल विस्तार में गटर लाइन का बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है. और वहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर ने अधूरा काम छोड़ दिया है उसके लिए पूरा रास्ता ख़राब हो गया है. और जो छेला सिग्नल विस्तार के लोग हैं
उनको नज़दीक में जो खानका परा करके एरिया है देवी पूजकों का, उसमें से आना जाना पड़ता है। आज 2 दिन पहले वहाँ पर शीला सिंघल के विस्तार का एक लड़का जा रहा था तो उसको मारने में आया, और उसने जब उसके मम्मी पापा को बुलाया तो उसके मम्मी पापा को भी धारिये से ऊपर हमला करा। अभी वो अहमदाबाद 16 सिविल में एडमिट है, पुलिस फरियाद भी हुई है। तो हम सीओ साहब से यही बात करना आए थे कि इसका जल्दी से जल्दी कोई सॉल्यूशन आवे। तो सीओ साहब ने बोला कि हमने राजपूत कंस्ट्रक्शन को ये पूरा जो काम है गदेमार वड़ के पास जो पंपिंग स्टेशन है वहाँ से ऑक्ट्रोय नाके तक और वहाँ से छेला सिंगल तक का जो काम दिया है, और हमारे सामने सीओ साहब ने बात भी की एजेंसी के से, तो उन्होंने बोला कि दशहरा के दिन हमारे टोटल मजदूर धौलका में आ जाएंगे और उसके 2-3 दिन में हम काम शुरू कर देंगे और करीब 1-1.5 महीने में पूरी गटर लाइन का काम पूरा कर देंगे। उसके साथ जो एक बड़ा दूसरा प्रॉब्लम है कि धौलका चूईफली ऑक्ट्रोय नाके से मैनाबेंड टावर तक पूरे रोड के ऊपर गटरों का पानी जाता है और पूरे रोड के ऊपर आने जाने वाले पूरे तमाम पब्लिक इसके तकलीफ उठा रहे हैं। तो हमने इसके लिए भी बोला, तो साहब ने बोला कि जीयूडीसी से मेरे बाद जीयूडीसी अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने हमारे सामने भी फ़ोन पर बात की। जीयूडीसी के अधिकारी ने बोला कि बहुत जल्द हम मैनाबेंड टावर से गदेमार पंपिंग स्टेशन सुधी नई गटर लाइन पूरी डाल देंगे, और इसके बाद सीओ साहब का ऐसा कहना है कि हम इसका भी काम दूसरी एजेंसी को देके पूरा काम करा देंगे, क्योंकि जो एजेंसी करके गई है सिवाई इंफ्रास्ट्रक्चर, उसने काम बिल्कुल बोगस किया है। उसके अंदर जो उसने करारनामा करा नगर पालिका, उसमें शर्त है कि जो ये काम बोगस करे कि काम अधूरा छोड़ दे तो उसके खर्चे और जोखम से ये सब काम पूरा करना। नगर पालिका ने उसका बिल भी रोक दिया है अभी, ऐसा हमको सीओ साहब ने माहिती दी है। तो ये काम भी जल्दी पूरा करने का हमको बोला है। हम उम्मीद करते हैं कि दिवाली आसपास गांव के प्रजा को एक नया रोड मिले गटर लाइन साथ और बिल्कुल स्वच्छ गांव मिले, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। इसके लिए हम सीओ साहब से भी मिले, सीओ साहब ने अच्छा पॉजिटिव दिया, हम उनका भी शुक्रिया करते हैं। आज बोर्ड में क्या कुछ रजूआत हुई इस मामले? आज हमारे नेता विपक्ष मंसूर खान तालुकदार है जो इनकी आगेवानी में हमने वो और दूसरे 9 कुल मिला के 10 सभ्यों ने गुजरात नगर पालिका अधिनियम 1963 कलम 51(2) मुजब मांगना वाली रेक्विजिशन बोर्ड बुलाया था हमने, जिसमें हमारा मेन मुद्दे 4 थे। एक तो धौलका के जो मध्य में गुया तालाब आया है, जो उसके किनारे पर सूफी संत पीर हजरत साहब बाबा की दरगाह ही है, नज़दीक में बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, पंचायत ऑफिस है, तालुका सेवा सदन है, बाजार विस्तार है। तो हमने इसके लिए बोर्ड बुलाया था, उसमें हमारी ऐसी मांग थी कि भाई इसको डेवलप करने में आवे और इसके लिए जो कुछ खर्च करना पड़े उसको खर्च करके 3 महीने के अंदर टेंडरिंग की तमाम प्रक्रिया पूरी कर देनी। दूसरी हमारी डिमांड थी कि धौलका नगर पालिका के अंदर जो रोजमदार कर्मचारी है वर्ग 3 के अंदर, गुजरात सरकार का परिपत्र 1999 के अंदर वर्ग 3 में रोजमदार की कोई जोगवाई नहीं है, परिपत्र है गवर्नमेंट का। चौथे वर्ग में तुम रोजमदार रख सकते हो और दूसरे और तीसरे वर्ग में तुम करार आधारित रख सकते हो। इसके लिए पूरी प्रक्रिया है कि जाहिरात देने की, लोगों की अर्जी मंगाने की, पसंद की समिति से हम इंटरव्यू दे हो इनका, उसमें से जो पास हुए उनको पास हुए लोगों का लिस्ट सरकार में, कलेक्टर में या प्रादेशिक कमिश्नर को भेजने का, वहाँ से जो मंजूरी मिले बाद उसको नौकरी रखने का जो है। लेकिन धौलका नगर पालिका में ऐसा कुछ होता नहीं, बरसों से अंधेर वहीवट चलता है और लोग बहुत से लोगों को यहाँ भर्ती कराए वर्ग 3 में, परिपत्र का भी उल्लंघन है, पूरे परिपत्र का भी उल्लंघन है। तो हमने ये मांग, और दूसरा नगर पालिका का 100 भंडोर जो लोग टैक्सी भरते हैं उससे इनको पगार देने में आता है। इतने गुजरात नगर पालिका अधिनियम 1963 के कलम 260 के मुताबिक ये उड़ाव खर्च में आता है। तो हम ये भी एक काम लाए थे कि सबको छूटे करो। और अभी धौलका नगर पालिका में गुजरात अर्बन मिशन के द्वारा सिविक सेंटर चालू है, इतने वधारे के कर्मचारी कोई जरूरत ही नहीं है, इतने तमाम को छूटे करने के, और जरूर पड़े तो करार आधारित इनको लेने की हमारी एक तो मांग थी। दूसरा, धौलका नगर पालिका विस्तार में जितेंद्र एंड भीमाणी जो एजेंसी थी उसने साख मार्केट और रेनवाड़ा विस्तार में जो रोड बनाए वो बिल्कुल टेंडर की शर्तों के विरुद्ध हल्की गुणवत्ता के बनाए थे। ये रोड बनाने के 2 महीने के बाद तमाम रोड टूट गए, दोनों रोड टूट गए। तो हमने डिमांड करी है कि ये रोड फिर से एजेंसी की लायबिलिटी 3 साल की है तो इनको नोटिस दे के 3 साल 2 महीने में फिर से तमाम नए सर से रोड बनाने की, ये भी हमारी मांग थी। और चौथा के जो धौलका शहर के अंदर गटर के ढक्कनों का है वो जो टेंडरिंग है वो
बिल्कुल कायदे से दी है। मैंने इसके लिए गुजरात नगर पालिका अधिनियम 1958 मुजब केस करा था। इनके प्रकरण निकल गया है, लेकिन मैंने इसकी अपील भी दाखिल करने की तैयारी कर ली है। मैं कल जुमेरात को मतलब गुरुवार को इसकी अपील दाखिल कर दूंगा कमिश्नर गांधीनगर में। दूसरा कि हमने साथ में 9/9/2024 को मांगनी करी थी बोर्ड बुलाने की, और 12/9/2024 को नगर पालिका अर्जी पहुँच नंबर 10/10 सभ्यों ने लिखित में दिया था कि कभी भी जब भी ये बोर्ड बुलाने में आवे, रिक्वेशन बोर्ड, उसमें वीडियोग्राफी करने में आवे और नगर पालिका की जो ओरिजिनल मिनट बुक कार्य नोंद है, कार्य नोंद की जो पूरी उसके अंदर लिखने में आवे। हमने ऐसा लिखित में दिया था, लेकिन आज जब 8/10/2024 को बोर्ड मिला, उसमें ना तो वीडियोग्राफी करने में आई है और ना ओरिजिनल कार्य नोंद में लिखने में आया है, वो रब बुक में चौपड़े में लिखा है। तो हमने इसका विरोध कराया और हमने लिखाया कि भाई हमने जो मांग की थी वो वीडियोग्राफी की और ओरिजिनल कार्य नोंद की जो आप लाए नहीं, तो ये बोर्ड आगामी 15/10/2024 12 बजे तक मुलतवी में रखने में आता है। और जब भी ये 15 तारीख को बोर्ड आवे, जब कार्य नोंद और वीडियोग्राफी की व्यवस्था करने में आवे, इसकी तमाम जवाबदारी चीफ ऑफिसर को देने में आवे, ऐसा हमने लिखा दिया। लेकिन प्रमुख श्री ने इनकी बहुमति थी, इन लोगों ने हमारा ठराव दरख्वास्त को उड़ा दी और सुधारे में इन्होंने काम चालू रखने का करा, तो हमने इसका वॉक आउट कराए।